चलो कहाँ तक आए थे अपन? क्वेश्चन नंबर 4 तक आए थे, आई गेस. यस, क्वेश्चन नंबर 4 वाज डन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. Evaluate. What they have asked? They have asked us to evaluate. क्वेश्चन में लिख ही दूंगी क्योंकि सिंपल सिंपल एक्सप्रेशंस है. वो कुछ तो सीक्वेंस मैटर करता है, कोई कोई साइंस के टेक्स्ट बुक में और कॉमर्स के टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस मैटर करता है. तो राइट डाउन द क्वेश्चन. ठीक है. सो यस, क्या बोला उन्होंने? इवैल्यूएट n factorial upon r factorial n minus r factorial for very first thing n is equal to 8 and r is equal to 6. इसके लिए अपन को वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है. कैन यू ट्राई? n के जगह पे सिर्फ 8 रखो. अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में बता देती हूँ. बस एक्सप्रेशन में रख के बता देती हूँ. n factorial upon r factorial n minus r factorial. n is what? 8. 8 factorial. r is what? 6 factorial. n minus r is 8 minus 6 factorial. चलो बताओ जल्दी फास्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Am I audible properly? Am I audible properly? Tell me. Am I audible properly? तुम्हारे साइड पे चेक करो, जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना उन अपने साइड पे चेक करो, क्योंकि आई गेस मेरी आवाज सही से जा रही है. so, प्लीज तुम्हारे साइड पे चेक करो, बाकी लोगों को कोई इशू नहीं है. यस, टेल मी. कितना है इसका आंसर? 28. ओके, सो यस, व्हाट इट इज? 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. 8 माइनस 6 इज 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. 6 factorial into 2 factorial. 6 factorial, 6 factorial will go. What is that? 4 sevens are 28. ठीक है, so 28 is the answer. Second, n is equal to 12 and r is equal to 12. चलो बताओ इसका आंसर फास्ट.
Okay, how much is the answer? डिनोमिनेटर में 2, 2 1 जा 2 4 जा 4 7 जा 28 है ना. अब ये जो n है, n is equal to 12 and r is equal to 12. So n factorial upon r factorial n minus r factorial. N factorial is how much? 12 factorial. R factorial is how much? 12 factorial. 12 minus 12. Okay. How much is this? 12 factorial, 12 factorial, and 0 factorial. Okay. So, yes, 12 factorial will go. 0 factorial is 1. So, this becomes what? 1. 1 upon 1 is 1. So, this was your question. This was your answer for second question. Now, question number 6. Find n if first n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial plus 1 upon 4 factorial, and I need to find out what? N. Chalo, try to solve it. Try to find it out. कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तुम कोशिश करोगे? Yes, will you be able to try it? चलो पहले तुम कोशिश करो. 0 factorial 1 होता है. Remember this thing. 0 factorial is always 1. Yes, 1848. N is equal to, very good. Perfect. Okay, so n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial plus 1 by 4 factorial. अब देखो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? इस 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन? 6 into 5 into 4 factorial ऐसे लिख सकते हैं, है ना? So 1 by 4 factorial can be taken out. This is what? N upon 8 factorial. 1 by 4 factorial can be taken out. So what is left inside? 3 upon 6 into 5 plus 1. All right. 1 upon 4 factorial can be taken out. What is left? 3 upon 6 into 5 plus 1. Now 3 ones are 3 twos are. अब इस 8 फैक्टोरियल को भी अपन थोड़ा स्प्लिट कर देंगे. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial is equal to 1 by 4 factorial, which is what? 1 by 10 plus 1, है ना? 1 by 10 plus 1. तो एलसीएम ले लो फिर. 10 ones are 10, 1 ones are 1, 10 plus 1 11. So what it would be? n is equal to, ये पूरा का पूरा टर्म इस साइड ट्रांसफर करो. क्या हो जाएगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial into 1 by 4 factorial into, this is what? 11 by 10. So this and this will go. Then 5 ones are 5 twos are 2 ones are 2 threes are. How much is this? N is equal to 56 into 33. So अगर 56 into 33 calculate किया तो you will get 1848. You will get n is equal to 1848. Check it out. है कुछ प्रॉब्लम? अंडरस्टूड एवरीथिंग? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. सेकेंड क्वेश्चन. n upon 6 factorial is equal to 4 upon 8 factorial
plus 3 upon 6 factorial. This is the question. चलो n का वैल्यू फाइंड आउट करो. सही आया है देव का आंसर. दोनों आंसर सही दिया यार तुमने. गुड. सर ने कुछ बोला क्या फेस टू फेस क्लास का? शुरू करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं? 11th. यस. चलो टेल मी फास्ट कितना आता है? चलो got the answer. Okay, so n upon 6 factorial is equal to 4 upon 8 into 7 into 6 factorial plus 3 upon 6 factorial. बाकी किसी को आंसर आ नहीं रहा है क्या? n upon this is 6 factorial. 6 factorial को कॉमन ले लो. ब्रैकेट के अंदर क्या बचा फिर? 8 into 7 plus 3. ठीक है. So what is this? 4 ones are 4 twos are 6 factorial. 6 factorial will go. N is equal to 1 upon 14 plus 3. है ना? तो कितना आया फिर ये? 14 threes are 42. 42 plus 1 is what? 43 upon 14. So N is equal to 43 upon 14 is the answer. ठीक है. Now third question. 1 upon n factorial is equal to 1 upon 4 factorial minus 4 upon 5 factorial. Chalo, tell me the answer first.
यस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल को स्प्लिट करो ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना? तो क्या है फिर यहाँ पे 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, 5 इज द करेक्ट आंसर। 1 अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाला अपन ने, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/5, है ना? 1 माइनस 1/5 बचा, सॉरी 4/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 5 माइनस 4 अपॉन 5, 5 माइनस 4 is 1, 1 upon 5, okay? So 1 upon n factorial is equal to 1 upon 5 into 4 factorial. So 5 into 4 factorial is what? 5 factorial. So 1 upon n factorial is equal to 1 upon 5 factorial. So n is equal to what? 5. Check it out. N is equal to what? 5 is the answer. समझ में आई बात? Okay. Got it ना? कुछ डाउट है तो पूछो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड n if first expression is n plus 1 factorial is equal to 42 into n minus 1 factorial। चलो सोचो इस पे। 5 into 4 factorial, 5 into 4 factorial क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। This is what 5 into 4 factorial। This is what 5 factorial ना, तो 5 into 4 factorial को हमने रिप्लेस कर दिया 5 factorial से। चलो आगे ट्राई टू सॉल्व इट। यस टेल मी फास्ट, कितना आता है? नो 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 यू कैंट राइट दैट 42 into n minus 1 वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन। कल ही बताया था मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन। ओके ये 42 का और ये n minus 1 का कोई लेना देना नहीं है। चलो क्या हो जाएगा फिर? ओके लेट्स चेक इट आउट। LHS, LHS is what? n plus 1 factorial। n plus 1 factorial को कैसे लिख सकते हैं? n plus 1 into n into n minus 1 factorial।
factorial. Can I write it like this? Yes, obviously we can write it like this. Okay, I mean LHS ऐसे करके नहीं करेंगे, simultaneously solve कर लेते हैं, वो सही रहेगा. n minus 1 factorial ना, n plus 1 factorial. अरे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? माइनस माइनस करते जाते हैं ना अपन. 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं अपन? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. मतलब क्या होता है? 5 माइनस 1 होता है, 4 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 होता है ना. तो n प्लस 1 को माइनस माइनस 1 करते जाओ. n प्लस 1, उसका माइनस 1 आया n, उसका माइनस 1 आया n माइनस 1. सही है ना? नेक्स्ट 42 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब क्या होगा? ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल निकल गए. क्या बचा फिर अपने पास? n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 42. अब सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं पता है लोग? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं. n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू 1 n, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं. लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना. दिस इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ठीक है. तो यस, n प्लस 1 इंटू एन, n प्लस 1 एंड n, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर से. कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे पीछे वाले. अगर n 4 रहा तो ये, अरे भावा कसं करायचं हे? माइनस वन करते जाते हैं ना यार अपन. 5 में से 1 गया 4 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, 3 में से 1 गया 2 आया. तो n प्लस 1 में से 1 गया n आया, n में से 1 गया n माइनस 1 आया. आगे लेके जाना है तो आगे लेके जाओ. n माइनस 1 में से 1 गया n माइनस 2 आया. एक एक माइनस करते जाते हैं ना अपन फैक्टोरियल में. तो n प्लस 1 में से 1 गया, n बचा, n में से 1 गया n माइनस 1 आया. सही है ना? यस, बोल जल्दी. पहले का सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो. अब ये क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? आगे पीछे वाले नंबर्स. यस, वेरी गुड पराग. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो मतलब ये क्या है? आगे पीछे वाले नंबर्स. मतलब अगर n 4 रहा तो n प्लस 1 5 होगा. अगर n 5 रहा तो n प्लस 1 6 होगा. अगर n 6 रहा, इफ n इज 6, n प्लस 1 इज 7. मतलब ये एक दूसरे के आगे पीछे वाले नंबर्स हैं, है ना. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो आगे पीछे भी है और मल्टीप्लीकेशन 42 भी देते हैं? तो कौन से नंबर से फिर? 7 इंटू 6, है ना. 7 इंटू 6. सही बात है ना. देखो n इज इक्वल टू 6 अगर मैंने लिया, 6 इंटू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 42. Therefore, comparing, what I will get? N is equal to 6 I will get. N is equal to what I will get? N is equal to 6 I will get. ये हमेशा ऐसा बेनिफिट होगा जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है. क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे वाले नंबर से इस वजह से अपन जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन कभी कभी नहीं रहते ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन. n plus 3 factorial is equal to 110 into n plus 1 factorial. चलो बताओ जल्दी आंसर कितना आएगा इसका? ऊपर की तरह ही करना है. ऊपर जो भी किया था अपन ने वैसे ही करना है. वेरी गुड देव. 8 आ रहा है आंसर ना. करेक्ट. पराग का भी आया 8.
ओके तो क्या हो जाएगा फिर अगेन ये n+3 है। फैक्टोरियल मतलब क्या करते जाते हैं अपन, -1 करते जाते हैं ना। तो n+3 में से एक माइनस किया, क्या बचा, n+2 बचा। n+2 में से एक माइनस किया, क्या बचा, n+1 बचा। n+1 मिल गया मुझे, स्टॉप इट हियर इटसेल्फ, स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। तो क्या है फिर 110 into n+1 फैक्टोरियल, तो दिस एंड दिस विल गो। ठीक है, सो यस क्या हो जाएगा फिर, n+3 n+2 इक्वल टू 110। ठीक है, सो n+3 इंटू n+2 मल्टीप्लाई कर लो, चलो फटाफट, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 2n। अभी तो नहीं है ना अपने पास ऐसा कुछ, कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। वैसे तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं, इफ यू चेक आउट ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही है ना। क्वाड्रेटिक मत करो, जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक करने की, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाते हैं ना। ओके क्या हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 10 एंड 11। चेक करो, इफ n इज इक्वल टू 8, if n is equal to 8, 8 plus 2 and 8 plus 3 will give me what, 110. 8 plus 2 is 10, 8 plus 3 is 11, 11 into 10 110। तो n क्या होना चाहिए फिर उसके लिए, 8 होना चाहिए, so that 8 plus 2 will give me 10 and 8 plus 3 will give me 11, so 11 into 10 will give me 110। Understood? कुछ प्रॉब्लम है यहां तक, बोलो। चले फिर आगे, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा थर्ड है ही नहीं क्या इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल, सॉरी इज टू n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल into n minus 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3। ये क्वेश्चन है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखते हैं फिर अभी क्या करने का, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। इसको उल्टा कर दो, ओके इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। कुछ आ रहा है, n फैक्टोरियल तो कट हो गया,
है ना। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये n-5 फैक्टोरियल वैसे ही रखो। अब डिनोमिनेटर को देखो जरा, ये क्या है, 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या करते हैं अपन, -1 करते जाते हैं ना। तो n-3 हुआ, उसमें से -1 किया, n-4 हुआ, उसमें से -1 किया, n-5 आया। तो रुक जाओ अभी, क्योंकि ऊपर भी वही दिखाई दे रहा है मुझे, इक्वल टू 5/3। तो ये और ये चला गया, ये और ये चला गया। कितना बचा फिर, ये 5 4 जा 20, 20/n-3 n-4 इक्वल टू 5/3। 5 4 जा what, 20, n-3 n-4 इक्वल टू 5/3। ठीक है ना। सो टेक इट हियर, 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n-3 n-4। अब इस 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, 20 इंटू 3/5 इज इक्वल टू n-3 n-4, 5 1 जा 5 4 जा, तो कितना है, 12 आया ना ये। n-3 एंड n-4 इज इक्वल टू 12। तो चलो बताओ फिर कौन से नंबर से, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, n-3 n-4 मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। तो कौन से नंबर्स हो गए ये, 5 4 इंटू 3, 12 कैसे आएगा, 4 and 3 से आएगा, है ना। हाउ विल आई गेट 10 12, आई विल गेट इट बाय मल्टीप्लाइंग 4 and 3, है ना। 4 इंटू 3 करने से मुझे वो 12 जो है वो मिल जाएगा। तो फिर 4 इंटू 3 कैसे आएगा फिर, हाउ कैन आई गेट 4 इंटू 3, n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा मुझे, what should be n, yes 7, है ना। n should be what, 7, then I'll get it as, so if n is equal to 7, 7 minus 3, 7 minus 4 will give me 12, है ना। therefore n is equal to what, 7। अगर नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाला सिचुएशन, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, लेकिन फिर 2-3 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, तो हमें नहीं बढ़ाने ना स्टेप्स, तो इसलिए मत करो फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन कैसा है देखो, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-5 factorial is to n factorial 5 factorial n-7 factorial is equal to 10:3। चलो try to solve this, कोशिश करो फास्ट। अच्छा आ गया देव का आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट।
यस, चलो देखो फिर रेशियो लेना है हम लोगों को. ओके, सो n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10/3. ठीक है, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 अपॉन 3. तो ये और ये तो चला गया, ठीक है ना. तो क्या बचा फिर, ये 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 7 को ऐसे ही रखो, है ना. नीचे क्या है, 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 में से 1 माइनस करते जाओ, n माइनस 5 में से 1 जो है वो माइनस करते जाओ. तो माइनस करते जाएंगे तो कैसे आएगा फिर वो, n माइनस 5 माइनस 6 minus 7 factorial is equal to 10 upon 3. 3 factorial will go. Okay, n minus 7 factorial will go. What is left? 5 into 4, 20. 20 upon n minus 5, n minus 6. ठीक है, अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, 20 into 3 is equal to 10 into n minus 5. 10 को नीचे से डिवाइड करो, कितना आया, ये 6 आया ना. So n minus 5, n minus 6 is equal to 6. तो n का वैल्यू क्या आएगा, 8 होगा. So if n is equal to 8, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, तो n is equal to 8 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 8 minus 5, 8 minus 6. ठीक है, so this is 3 into 2 is what, 6. ठीक है ना, 3 into 2 is what, 6. All right, okay. नेक्स्ट, सो n क्या होना चाहिए फिर, 8 होना चाहिए. अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? कुछ डाउट है किसी को तो बोलो. एनी डाउट टू एनीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 9. n हमें फाइंड आउट करना है, 17 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, मुझे बताना पड़ेगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना. तो क्या करेंगे फिर, अभी यहाँ पे देखो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है तो माइनस वन करते जाएंगे अपन, है ना. तो 17 माइनस n फर्स्ट टर्म आया, साइड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वहां पे डायरेक्ट स्टेप लिखने वाली हूँ, इस वजह से मैं पहले साइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, एज ए रफ वर्क. अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है. देखो 17 माइनस n फैक्टोरियल अपने पास. ओके, तो 17 माइनस n फैक्टोरियल कैसे होगा, 17 माइनस n, 17 माइनस n माइनस 1, है ना. 17 माइनस n माइनस 1, फिर से माइनस 1, है ना. ये माइनस 1 कर दिया और फिर से क्या आ जाएगा फिर, ये -2. सही है, सही है ना. देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं अपन, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना. तो ये 17 माइनस n को कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखने वाले हैं अपन, माइनस वन करते जाएंगे. ठीक है, तो पहले क्या किया अपन ने, 17 माइनस n किया अपन ने यहाँ पे. अब इसको क्या करना है, फिर से -1 करना है, 17 माइनस n माइनस 1. 17 माइनस 1 इज व्हाट,
16 है ना. 17 minus 1 is what? 16. फिर से -1 करना है. फिर से -1 करेंगे, क्या आएगा ये? 16 minus 1 it is 15. ठीक है. फिर से -1 करना है, क्या आ जाएगा ये? 14 minus n फैक्टोरियल. रुक क्यों गए अपन? बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें 14 minus n फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, इस वजह से अपन रुक गए. अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? यस. क्या क्या हुआ, समझ में आया? बस अपन -1 करते गए हैं और कुछ भी नहीं है. और -1 करते जाएंगे तो वहां पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रुकना कहाँ पे है. ओके. तो जहां पे डिनोमिनेटर का नंबर आ जाएगा वहां पे रुक जाओ. ठीक है. वहां पे अपन क्या हो गए? रुक गए. समझ में आ रही बात? ओके. सो 17 minus n फैक्टोरियल था, -1 कर दिया, 16 minus n हो गया, फिर से -1 कर दिया, 15 minus n हो गया, फिर से -1 कर दिया, 14 minus n हो गया. ऑलराइट. तो यस, यही एक्सप्रेशन मुझे लिखना था, बस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना जरूरी लगा, इस वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया. तो क्या है फिर यहाँ पे देखो, 17 minus n, 16 minus n, 15 minus n, 14 minus n factorial upon 14 minus n factorial is equal to 5 factorial. तो ये और ये गया, क्या बचा फिर अपने पास? 17 minus n, 16 minus n के बाद yes 15 minus n equal to how much is this? 120. सही है ना? 5 factorial into 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial into 1. How much is this? 60 into 120. So 17 minus n, 16 minus n, 15 minus n is what? 120. So can we expand denominator instead of numerator? डिनोमिनेटर एक्सपांड करने से क्या मिलेगा तुम्हें? देखो डिनोमिनेटर एक्सपांड करके कुछ मिलता है क्या? चेक करो. देखो सपोज मैंने डिनोमिनेटर एक्सपांड किया, ठीक है, 14 minus n फैक्टोरियल को मैंने एक्सपांड किया, क्या आ जाएगा 14 minus n फैक्टोरियल को एक्सपांड करके? 14 minus n, -1 किया 13 minus n, फिर से -1 किया 12 minus n. कुछ मिल रहा है क्या ऊपर? कुछ नहीं मिल रहा है हमें. न्यूमरेटर को क्यों एक्सपांड किया मैंने? क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे यहाँ पे मिल रहा था, सो दैट आई कैन कैंसिल इट आउट. इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं. डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में मिल रहा है मुझे, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर को एक्सपांड नहीं किया, सिर्फ न्यूमरेटर को एक्सपांड किया. ठीक है. चलो आगे बढ़ते फिर. अब ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव नंबर से फिर से 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स. तो कौन से 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऐसे हैं जो मुझे मल्टीप्लीकेशन देंगे 120? Which 3 consecutive numbers will give me multiplication as 120? 4, 5, 6. Okay, so 4, 5 and 6 are the consecutive numbers which will give multiplication is equal to 120. ठीक है. Multiplication is equal to what? 120. All right. ठीक है. सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अब थोड़ा सा. ओके. तो 4, 5, 6 कैसे आएगा? n is equal to क्या लेना पड़ेगा मुझे, so that I will get 4, 5, 6. 17 minus n, 16 minus n, 15 minus n is equal to 4 into 5 into 6. सपोज नहीं विजुअलाइज हो रहा है
कि n इज इक्वल टू 11 आने से मुझे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मिलेंगे। ये चीज तुम्हें नहीं विजुअलाइज हो रही, समहाउ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा है नंबर, क्या करोगे? देखो बताती हूँ। 17 माइनस एन, 16 माइनस एन एंड 15 माइनस एन, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 15 माइनस एन, है ना? और इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 4। सपोज समहाउ नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि ये तीनों में आई मीन एन का वैल्यू क्या लेना चाहिए सो दैट आई विल गेट 4 5 6। सपोज नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, तो कैसे ऑब्जर्व करना है हमें? इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 15 माइनस एन। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 4। इक्वेट करो। सो 15 माइनस एन इज इक्वल टू 4. So 15 minus 4 is equal to n. Therefore n is equal to 11. Therefore what? n is equal to 11. समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। कुछ इश्यूज है? बताओ। ओके डन। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। 15 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन ये 11 11। अच्छा उसका भी 11 आ रहा है क्या? चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। ओह उसका भी 11 आ रहा है, गुड, क्या बात है। आ भी गए आंसर्स लोगों के। ओके क्या होगा? फिर से -1 करते जाएंगे अपन। 15 माइनस एन, 14 माइनस एन, 13 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12. दिस एंड दिस विल गो। क्या बचा फिर? 15 माइनस एन, 14 माइनस एन इज इक्वल टू 12. कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेंगे अपन? कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 12 आता है? 4 एंड 3। इससे बोला था मैंने इक्वेट करने को। इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा कौन है? इक्वेट करो। 14 माइनस एन इज इक्वल टू 3. So 14 minus 3 is equal to n. So n is equal to 11. N is equal to what? 11. Understood? Okay. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो अभी। क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव एन अटेम्प्ट. 2n factorial upon 7 factorial 2n minus 7 factorial is to n factorial upon 4 factorial n minus 4 factorial equal to 24 is to 1. चलो try to solve it. कोशिश करो fast. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, काफी लेंदी है, थोड़ा सा नहीं बोलूंगी, काफी लेंदी है क्वेश्चन. यस, कुछ आया? सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है पता है? देखो, इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. लोग क्या करते हैं, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कट करते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग. क्या करना है यहाँ पे, ये 2n मतलब कंप्लीट फैक्टोरियल है उसको, ये 2 इंटू n ये कंप्लीट फैक्टोरियल है. ओके, ये 2 और n यहाँ पे सेपरेट नहीं है. हाँ, अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता ना, अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता तो तुम कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2n कंबाइन है. ठीक है, तो क्या होगा फिर यहाँ पे 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 2n minus 5 2n minus 6 2n minus 7 factorial 7 factorial into 2n minus 7 into यहाँ पे क्या है 4 factorial n minus 4 factorial अपॉन, इसको स्प्लिट करते हैं, n minus n n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 factorial इक्वल टू 24 अपॉन 1, ऐसे आएगा. ठीक है, तो क्या होगा फिर, ये देखो, ये और ये तो गया, ये और ये भी गया, क्या बचा फिर 2n
2n माइनस 1, यहां से ठीक है, मत निकालो कॉमन। 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6 अपॉन ये जो नीचे, ये जो 7 फैक्टोरियल है और ये जो 4 फैक्टोरियल है, ये कट हो जाएंगे अगर तुम इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखते हो। दिस इज व्हाट n, n minus 1, n minus 2, 24 upon 1. Okay, so this and this will go. Okay, अब यहां से 2 कॉमन निकालो, यहां से 2 कॉमन निकालो। अब ये n जो है अभी ये इनसेपरेट हो गया, अब इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 2n, 2n माइनस 1, ये 2 को कॉमन निकाला, माइनस 1, ये 2n माइनस 3 है, इस 2 को कॉमन निकाला, n माइनस 2, ये 2n माइनस 5 है, 2 को कॉमन निकाला, n माइनस 3, होल डिवाइडेड बाय n, n minus 1, n minus 2, 7 into 6 into 5 equal to 24 upon 1. This and this will go, this and this will go, this and this will go. Okay, so ये 2 1s are, 2 3s are, ठीक है। कितने 2s बचे? 1 2 3, 2 into 2 4, 4 into 2 8. ओके, फिर क्या बचा यहाँ पे? 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये लिया नहीं ना, n माइनस 3, यहाँ पे n माइनस 3 था ना, n माइनस 3 मैंने लिया नहीं था, ये भी कट हो जाएगा। सो 2n माइनस 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा ये, इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 5, एंड ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, देखो जरा चेक करो। एट वन जा, 8 3 जा, है ना। तो क्या है फिर ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ये कितना आया? 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 इंटू 7 कितना होता है? 7 5 जा 15, 28 एंड 1, एक मिनट, 7 5 जा 35, 28 एंड 3 31, 315। अब क्या है ना, मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, अब ये 315 मत लिखो, मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए, मुझे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 2 2 के गैप से नंबर्स चाहिए। व्हाट आई वांट, देखो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, कैसे आ रहे हैं ये नंबर? -2 से आ रहे हैं, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं, है ना। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है क्या ये? नहीं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। ये क्या है? 315 है। अरे भावा, ये 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना आता है? 105 आता है, मुझे 315 चाहिए। कौन से नंबर से बताओ जल्दी, विच आर द नंबर्स विच विल गिव मी 315 विद द डिफरेंस ऑफ 2? चलो बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, 5 7 एंड 9, है ना। So 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5, 5 7 9। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? कौन बताएगा मुझे? Which one is smallest?
यस यस यस, वेट, पूरा क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट करने वाली हूँ, डोंट वरी. विच वन इज स्मॉलेस्ट? 2n-1 छोटा है, 2n-3 छोटा है, या 2n-5 छोटा है? दिस इज स्मॉलेस्ट, ना? चेक करके देखो, कोई भी एक रैंडम वैल्यू रख दो यहाँ पे. सपोज मैंने 5 रखा. 5 into 2 10, 10 minus 1 9, 5 into 2 10, 10 minus 3 7, 5 into 2 10, 10 minus 5 5. ये सबसे छोटा वैल्यू आया ना? यस. सो सबसे छोटा कौन है? 2n-5. इनमें सबसे छोटा कौन है? 5. So 2n-5 is equal to 5 is what? 2n equal to 10. So n equal to 5. देखो कुछ नहीं किया है अपन ने, कुछ नहीं किया है, बस एक्सपांड किया है ब्रैकेट. मैंने इसको एक्सपांड किया मैंने सबसे पहले 2n फैक्टोरियल को. 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, 2n-5, 2n-6, 2n-7. नीचे क्या है? 2n-7. ये और ये चला गया. n फैक्टोरियल को मैंने स्प्लिट किया. n, n-1, n-2, n-3, n-4. n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल विल गो. ठीक है. क्या है फिर यहाँ पे? 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, 2n-5, 2n-6. यहाँ पे क्या है? 7 फैक्टोरियल. 7 into 6 into 5. ये 2n-7 factorial and 2n-7 factorial will go. Okay. So what is left? n, n-2, n-3, n-2. ठीक है. अब मैंने कॉमन लिया यहाँ से 2 को कॉमन लिया, यहाँ से 2 को कॉमन लिया, यहाँ से भी 2 को कॉमन लिया. फिर क्या बचा अपने पास? 2n, 2n-1, 2n-3, 2n-5. क्योंकि ये जो है ऊपर वाले नंबर से इसके साथ कट हो जाएंगे. ठीक है. सो 2n, n भी कट हो जाएगा. 2 3 जा 2 into 2 into 2 8 है ना? 2 into 2 into 2 8. फिर ये क्या है? 7 into 3 into 5. 7 into 3 into 5 will come on this side. 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 7 into 3 into 5 come on this side. 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 2 into 2 into 2 8 जो है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. सो क्या हुआ फिर? ये 8 1 जा 8 3 जा 3 3 जा 9, 7 and 5. It comes out to be 315. So what are the consecutive numbers which will give me multiplication as 315? Which consecutive numbers will give me multiplication as 315? 5 into 7 into 9. Now 5 into 7 into 9 will give me multiplication as what? 315. Any doubt? So इन तीनों में सबसे छोटा कौन था? 2n-5. And इन तीनों में सबसे छोटा कौन था? 5. So after equating, I got n is equal to 5. So it was easy. Not actually easy. It is little bit lengthy. Okay. तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पहले लूंगी. क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्लास में पहला क्वेश्चन रहेगा. सो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 and 13 आई एम गोइंग टू फिनिश आउट. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 12. क्या है ये? 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल is equal to 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. चलो ट्राई टू सॉल्व इट.
चलो, गॉट द आंसर. ओके, चलो देखते हैं फिर कैसे सॉल्व करना है इसको. 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये प्रूव करना है हमें ना, दिस थिंग वी नीड टू प्रूव. तो एलएचएस ले लेते हैं फिर कंसिडरेशन में. एलएचएस इज व्हाट, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं, और एल्स इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे अपन. 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट 5 फैक्टोरियल. अब 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल कॉमन निकालते हैं. क्या आया फिर 1/6, यहाँ पे आया 1/4. ठीक है, I got it as 1/6 and 1/4. अब क्या करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. वैल्यू मत फाइंड आउट करो यार. वैल्यू फाइंड आउट करना इज नॉट द स्मार्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. 4 into 1, 6 into 1 124. सही है ना. 4 into 1, 6 into 1 124. तो क्या हो जाएगा फिर ये, yes, it becomes what, 9 factorial into 10 upon 24 into 3 factorial 5 factorial. क्या है यहाँ पे, 4 factorial 6 factorial है. मुझे क्या मिला है, 3 factorial 5 factorial मिला है ना. यहाँ पे क्या है, 4 factorial 6 factorial है. मुझे क्या मिला है, 3 factorial 5 factorial मिला है. So what I'm going to do, 10 into 9 factorial is what, 10 factorial whole divided by, this can be split as 6 into 4 into 3 factorial into 5 factorial. थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन को एंड टेल मी व्हाट कैन आई डू. यस, करेक्ट. ये जो है ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये जो है ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल. So 10 factorial upon 4 factorial into 6 factorial. ठीक है, so this is the answer. Okay, one more question, one last question. Question number, example 13, question number 13 का, question number 13 का first I'm going to explain, second जो है do it as a homework. First is 8 factorial. पहले तुम कोशिश करोगे obviously, value find out करना है हमें. ये जो है ना, ये होमवर्क के लिए कर लो. अभी ये ट्राई करो, चलो फास्ट.
करेक्ट, 3370 इज द आंसर। कैसे? देखो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन? 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? अभी अभी यहाँ पे तो कुछ कॉमन निकालने के लिए कोई चांस नहीं है, सो 4 फैक्टोरियल को सीधा अपन 24 लिख देंगे। कॉमन निकालने के लिए कोई चांस नहीं ना उधर, इस वजह से। सो 5 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 12 कितना आता है फिर? ये 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है। करके देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट विल कम आउट टू बी 120 इंटू ब्रैकेट। ये कितना होता है? 48 इंटू 7, इट कम्स आउट टू बी 336। अब ये कितना आया? 10 इंटू 337। दिस इज द आंसर। 2 क्वेश्चंस बचते हैं इसमें से, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू मूव टू परम्यूटेशन। ठीक है, स्टॉप हियर नाउ, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, मंडेज क्लास। चलो।